Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and welcome to Muhammad Ali Jinnah University Digital Studio. The purpose and the reason why I thought to have a video shoot today, because it's a new year and happy new year to all of you. जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हमारी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हैं, वो या जो लोग जो मुझे कहीं पे भी सुन रहे हैं, उन सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हैं. Like I said, the reason why I decided to record a video today and the topic that I have selected today is absolutely 100% related with your final examination. And the topic that I have selected for you today is the presentation skills. Now, why I have chosen this topic, whether you belong to any discipline of this university, whether you are the student of CS, or you are the student of management sciences, engineering, biosciences, or any discipline you say, you have to have or you have to deliver a presentation before your final examination. And especially the students who are enrolled in oral communication courses. Abhi recently, few of my students messaged me on Google Classroom, ke sir, why can't we have only a project or report? Why the presentation is necessary? And such questions keep coming to me every day. Even in the classes, students say, sir, क्या presentation देना ज़रूरी है? हमें English नहीं आती. याद रखिए, presentation के लिए या good communication skills के लिए English does not matter. I know many of the students who know English, but they do not present themselves. I know many of the students who speak good Urdu, but even they cannot present themselves well. मैं यहाँ एग्जाम्पल दूंगा आपको. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द क्रिकेट टीम प्लेयर ऑफ पाकिस्तान. हैव यू एवर सीन देम टॉकिंग? हैव यू एवर सीन देम कम्युनिकेटिंग? द कम्युनिकेशन एरिया ऑफ ऑल ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम आर वीक. चाहे वो पाकिस्तान में इंटरव्यू दे रहे हों, पाकिस्तान में अगर वो मैन ऑफ द मैच हो जाते हैं तो स्टिल दे फील शाय एंड दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. उसकी वजह ये है कि कम्युनिकेशन स्किल पे ग्रिप नहीं है. Unfortunately, we do not have any training sessions, even in schools, even in colleges. We do not have any training sessions as far as communication is concerned. यूनिवर्सिटी में आके हमें पता चलता है कि जी कम्युनिकेशन स्किल भी कोई चीज़ होती है. तो जब कम्युनिकेशन स्किल का आपको इतना नहीं पता तो प्रेजेंटेशन में ऑफ कोर्स यू वुड हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. Fortunately, the course that we have designed in this particular university, Muhammad Ali Jinnah University, जिसको हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं, वो कम्युनिकेशन की बुनियाद और बेसिक अपॉर्चुनिटी बन जाती है बच्चों के लिए, बिकॉज देयर इज़ नो रिटन एग्जाम इन दिस. ईच एंड एवरी स्टूडेंट, वेदर दे आर अफ्रेड, दे आर नर्वस और दे आर स्ट्रॉन्ग, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. वो आके बात करते हैं, एक नहीं 7-7, 8-8 असेसमेंट उनकी ओरल कम्युनिकेशन पे होती है. देखिए, प्रेजेंटेशन वो चीज़ नहीं है जो आप रट के लिख के बता देंगे. Communication is a skill that you have to practice and that you have to apply. Same applies with presentation skills. Presentation skill में दो चीज़ें मैटर करती हैं, याद रखिएगा. When you talk about presentation skills, it is probably the test of your two things. Number one, your communication, the way you speak, and number two, the content of the presentation. जो टॉपिक आपने चुना है, जो रिसर्च रिपोर्ट है या कुछ भी है जिस पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है. So if your communication skills are blended with good content, you will be a very good communicator. तो दो चीज़ें तो ये हो गई. Number one, your communication skill has to be strong because it's a test of your communication. और उससे पहले भी एक और चीज़ आती है जिसको मैं उस तरह ही इंपॉर्टेंट समझता हूँ. दैट इज़ योर फिजिकल अपीयरेंस. एट टाइम्स आई नो दैट पीपल आर वेल प्रिपेयर्ड, दे लुक गुड, दे हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ देयर क्लोथ्स, दे बाइंग देयर शूज़, एवरीथिंग. उस पर बड़े परफेक्ट होते हैं, वो देखने में बड़े ज़बरदस्त लगते हैं, लड़के हों या लड़कियाँ हों, दे लुक सो प्रेजेंटेबल. बट वेन एवर दे स्पीक दे लुक नर्वस. वेन एवर दे टॉक दे लुक दैट दे डू नॉट हैव अ गुड कॉन्टेंट टू टॉक अबाउट. तो एक यस, आपकी अपनी प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है. यू शुड बी प्रेजेंटेबल. नंबर टू, योर कम्युनिकेशन शुड बी स्ट्रांग, उस पर हम बात भी करेंगे. और तीसरा है आपका कंटेंट. उसके बाद अहम चीज़ जो किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी होती है, दैट इज़ दैट
who is your audience? The presentation that you're trying to make, who is going to listen to it? It's probably your teacher in the university setup and of course your friends who are sitting in front of you. तो आपकी presentation class में होती है तो आपकी audience आपके दोस्त हो जाते हैं, teachers हो जाते हैं, and at times in my classes I also invite few of the faculty members and few of the external guests who come and evaluate you. So ये depend करता है कि आपकी audience को, and you all know that who is your audience. So आपकी audience ज़्यादातर पढ़ी लिखी है. They know and understand what communication mechanic is and they are there to listen to you जो बातें आप करते हैं. प्रेजेंटेशन को आसान बनाने के लिए, क्योंकि आपको 20-25 मिनट का टाइम मिलता है, 15 मिनट का टाइम मिलता है, द बेसिक थिंग दैट पीपल फॉरगेट, द स्टूडेंट्स दैट आई हैव सीन, दे टेंड टू फॉरगेट इज दैट दे डू नॉट मेक एनी आउटलाइन. द बेसिक क्राइटेरिया टू डिलीवर एनी प्रेजेंटेशन इज दैट दे शुड मेक आउटलाइन. चाहे वो 10 स्लाइड्स हों, 12 स्लाइड्स हों. अब लोग कहेंगे कि सर आउटलाइन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. आउटलाइन की ज़रूरत पड़ती है भाई, ये मैंने आउटलाइन बनाई हुई है ना. This is what? This is outline, because even being teaching communication courses for more than 7-8 years, still I feel that I can be distracted. मैं nervous हो सकता हूँ, मैं भूल सकता हूँ. तो ये outline हमें help करती है. If you talk about any host in the world, चाहे वो दुनिया का number 1 host हो, TV anchor हो, वो सब जो है वो course outline बनाते हैं. I mean outline बनाते हैं basically. It is a guideline. It is a road map. आपने अगर किसी रूट को फॉलो करना है ना तो गूगल मैप आपको रूट बता रहा होता है. ये आउटलाइन जो आप बनाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट रूट टू रीच टू द डेस्टिनेशन. इफ यू डोंट नो द रूट प्रॉपरली, हाउ कम यू विल बी एबल टू रीच टू द डेस्टिनेशन प्रॉपरली? सो इवन इफ एट दिस एज आई मेक दीज आउटलाइंस, तो आप सबको बनानी चाहिए. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आउटलाइन के बाद आती है, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स में भी इफ़ यू सी देयर आर 2 मेजर थिंग्स दैट आर मेजर्ड एंड गेज्ड प्रॉपरली. नंबर 1 आपकी वर्बल कम्युनिकेशन और नंबर 2 आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे हम डिटेल में बात करेंगे. उसके लिए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो आई शिफ्ट यू टू दी स्टैंडिंग पोजिशन. आई शिफ्ट माई सेल्फ टू दी स्टैंडिंग पोजिशन. लाइक आई सेड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वुड हेल्प यू इन डिलीवरिंग अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन. 2 चीज़ें हैं जो आपको बहुत अहमियत के साथ समझनी पड़ेंगी. नंबर 1 ऑफ कोर्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स में योर वर्बल कम्युनिकेशन एंड योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दे आर द इंटीग्रल पार्ट जो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल को टॉप पे लेके जाएंगे, या सही नहीं होंगे तो नीचे लेके आएंगे. वर्बल कम्युनिकेशन का ताल्लुक है द वे यू स्पीक, द टोन, द पिच, जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं, जिस ग्रेजर से आप बात कर रहे हैं, जिस अंदाज से आप बात कर रहे हैं. At times people say it's not the words that at times hurt people or impress people, it's the way you communicate. आप जब अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो आपकी आवाज़ बिल्कुल धीमी मरी हुई नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी स्ट्रॉन्ग दैट समबडी इज वेरी कॉन्फिडेंट. अगेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ 2 कैप्टन्स. फॉर इंस्टेंट, जब टॉस होती है क्रिकेट के पिच पे, हमें एज कम्युनिकेशन टीचर अंदाज़ा हो जाता है व्हेन बोथ ऑफ द टीचर्स से जब बोथ ऑफ द कैप्टन से जब इंटरव्यू लिया जाता है. फॉर इंस्टेंट, इफ देयर इज अ कैप्टन ए एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द पिच रिपोर्ट एंड हिज टीम सिलेक्शन, और दूसरा कर रहा होता है, तो उनकी आवाज़ से हमें पता चल जाता है what फीलिंग दे हैव. सो कम्युनिकेशन विद वर्ड्स, और उसमें आपका टोन, आपका वॉइस, जब ये क्लियर नहीं है, ना आपने इतना ज़्यादा बोलना है, इतना जल्दी बोलना है, और ना इतना स्लो बोलना है. इट हैज़ टू बी अ बैलेंस सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड यू. डू नॉट एक्सपेक्ट कि जो चीज़ आपको समझ आ रही है वो सबको समझ आएगी. नो, योर अंडरस्टैंडिंग may be absolutely different from others. अगर आप ज़्यादा तेज़ बोलेंगे तो लोग सुन ही नहीं पाएंगे. अगर वो सुन नहीं पाएंगे तो आपका बोलना ही फजूल है. So you have to be, you have to understand which flow of the pace that you would go along. दूसरी चीज़ है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज योर बॉडी लैंग्वेज. Now it's not surprising that your body speaks.
Even if you don't say anything, your body speaks. आपका बात करने का जो अंदाज है, आपकी जो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है, आपका जो आई कांटेक्ट है, आपका जो देखना है लोगों की तरफ, वो डिटरमिन करता है हाउ कॉन्फिडेंट आर यू. I know many of the female students in particular, with due respect to all female students of mine and everybody, वो अक्सर कहती हैं कि सर प्रेजेंटेशन देने में आई हैव द प्रॉब्लम बिकॉज स्टूडेंट्स, माई कोलीग्स, माई फ्रेंड्स एंड इवन द टीचर्स, दे कीप लुकिंग एट अस. सर हमें घूरते हैं. तो क्या हो गया भाई, आप प्रेजेंटेशन देने आए तो लोग आपको देखेंगे. घूरना घूरना इन अ सेंस बुरी बात है. बट व्हेन यू आर देयर टू प्रेजेंट योरसेल्फ, तो लोग आपको देखेंगे. खाली कमरे में थोड़ी प्रेजेंटेशन होती है. I gave you an example of one of my students when I was teaching in the other university. She was an MBA student, and she said she was very brilliant, very confident, but whenever she speaks to the public in presentations, वो बहुत नर्वस हो जाती थी. Always she had a problem कि सर मुझे लोग घूरते हैं. So what if they are staring at you? It's just a matter of 5 to 6 minutes. अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप सब मुझे घूर रहे हैं. A teacher who stands in the class, everybody stare at them. No problem. So if even they are staring at you, do not lose your confidence. Eye contact बहुत जरूरी है. Eye contact में भी you do not have to fix your eyes to one or two friends जो वहाँ बैठे हुए हैं. You have to look around everybody. The whole class is your audience, not the backbencher, not the front bencher. The whole class. उससे पता चलता है आपके confidence level का also. If you do not pay any attention on your non-verbal communication, आपकी body language अगर weak है, you will not be able to determine or deliver a very good comprehensive presentation. चाहे आपकी आवाज़ कितनी ही अच्छी हो. अच्छी आवाज़ होना, it's a blessing. But your hand and eye coordination, eye contact, the way you talk, the way you move, the way you utilize the stage, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. The other one is your appearance in front of the crowd. इस पे हम बात कर चुके हैं. Your physical appearance has to be 100%. इस पे मैं आपको बता दूं, जब when I ask normally to my students, how is your presentation preparation going on? They say, sir, it's perfect. When I inquire how it is perfect, वो कहते हैं, sir, we have bought 2 new shoes, I've bought 1 coat, 3 pieces, sir, टाई ले लिए, कपड़े, बहुत अच्छा है. सिर्फ ये प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन नहीं होती है. Yes, this is your physical appearance preparation, which is also important. If you are not presentable, then people, of course, will not listen to you. तो ये भी बहुत ज़रूरी है. तीसरा है presentations बनाना. मैंने देखा है जो color combination students use करते हैं वो ठीक नहीं होता. अगर कोई पीछे बैठा हुआ है, the words that you have written and of course the background colors that you have mentioned, जो आपने डाले हुए हैं, वो इतने आपके वर्ड्स भी डार्क हैं, आपका कलर भी डार्क है, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का है, नजर ही नहीं आता आपने क्या लिखा है. सो वेन एवर यू मेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बिकॉज इट्स अ विजुअल वर्ड, यू नो दैट, जो दिखता है वो बिकता है. आपकी विजुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो चीज़ें बहुत बेहतर लोगों को समझ आएंगी. द पर्पज ऑफ सिटिंग इन द क्लास एंड लिस्टिंग टू योर प्रेजेंटेशन इज दैट दे वांट टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. वो दूर से किसी बंदे को नज़र ही नहीं आएगा तो उसका फ़ायदा नहीं है. सो कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल भी आपने रखना है जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बताते हैं. विजुअल्स का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्टोरियल पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं आप. ये सब चीज़ें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी अच्छी हैं. एंड आई लेट मी टेल यू दिस, एंड आई एडमिट दैट द स्टूडेंट्स एंड द जनरेशन ऑफ टुडे, दे आर वेरी गुड एट टेक्नोलॉजी इफ़ आई कंपेयर देम विद माई सेल्फ एंड अदर्स. सो टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को इफेक्टिव बनाने के लिए. उसके बाद आपकी जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाती है, दी अदर नर्वस पॉइंट दैट आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एंड मेंशन्ड इन माय स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, आई वुड से. एक तो उनका इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत नर्वस होते हैं, और दूसरा डीलिंग विद द क्वेश्चंस व्हेन दे आर डन विद द प्रेजेंटेशन. जब उनकी प्रेजेंटेशन ओवर हो गई है, क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट थिंग टू टेक क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर ऑडियंस. हाउ वीक द क्वेश्चन इज, how easy an ordinary question is, you have to pay respect to it. मैं देखता हूं कि आपकी क्लास में अगर आपका कोई दोस्त आपसे सवाल कर रहा है तो प्रेजेंटेशन के दौरान वो कह रहे होते हैं, हाँ तुझे मैं देख लूंगा बाद में. ऐसा नहीं होता भाई. यू आर प्रोफेशनल एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन. नोबडी इज योर फ्रेंड, all is your audience. Audience में भी, if you see, there are certain questions which make you difficult, which make you angry. But it is the test of your temperament. It is the test of your behavior. Even if you do not know the answer,
इवन इफ यू नो द आंसर, इवन इफ यू नो कि ये लोग आपको टीज करने के लिए सवाल पूछ रहे हैं ऐसे, तब भी आपको अपना अपना टेम्पर नहीं खोना है. इट इज ऑल्सो अ टेस्ट. यू हैव टू बी एब्सोल्युटली विजिलेंट अबाउट एनीथिंग. क्वेश्चंस को रिस्पेक्ट दीजिए. अगर आपको आंसर नहीं भी आता, याद रखिए वी ऑल आर ह्यूमन. इवन इन क्लासेस मेनी देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच स्टूडेंट्स आस्क मी. मुझे आंसर नहीं आ रहा होता तो मैं उनको कह देता हूँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन रफीक, इट्स अ गुड क्वेश्चन सारा, आई एम सॉरी आई डू नॉट रिमेंबर व्हाट exactly is the answer for that. I'll come back to you tomorrow. So if you feel there is a question that you don't know the answer, आप कह सकते हैं. I'll appreciate if you give me a little more time to give you a confirmed question. I'll come back to you. तो ये सब वो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं और ये एग्ज़ाम में आपको काम आएंगी. आपके चाहे वो रिसर्च के थीसिस के प्रेजेंटेशन चल रही हैं, FRP चल रहा है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. Every discipline, like I said in the beginning, you have to give a presentation, especially the students of oral communication. I hope today's lecture, today's talk will help you in preparing yourself properly. मुझे उम्मीद है आप लोगों ने enjoy किया होगा. इस तरह की वीडियोज़ हम कंटिन्यू करेंगे. This is what the digital studio of Muhammad Ali Jinnah University is all about. Thank you very much.